So in the world geography, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, कितना चैप्टर है वर्ल्ड ज्योग्राफी का? हाउ मेनी चैप्टर इन वर्ल्ड ज्योग्राफी? टोटल चैप्टर कितना है? चैप्टर बोलो, इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो फर्स्ट वन इज यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। सेकेंड वन इज geomorphology. Geomorphology all about the related of interior of earth from crust to core, understood? Geomorphology. Then climatology, then oceanography, mapping of the world. Mapping very important है, mapping of the world means the physical geography. Mapping of the world means physical geography का पूरा mapping चाहिए, physical and political mapping, understood? Mapping of the world very important topic है, mapping of the world. Physical plus political mapping of the world. Physical plus political mapping of the world. So these are the very important topic for our world geography, understood? So we have completed the universe and solar system, है ना? Universe and solar system. After that geomorphology हो रहा है, geomorphology almost complete है. So we have क्या क्या हो गया geomorphology में? Origin हो गया ना? Origin. After that we have discussed the interior of earth, interior. Then we discussed the theory हो गया ना? Three theory, there are three important theory. गुजर कौन सा है theory? कौन सा theory है? Continental, बोलो, continental drift theory, plate tectonic theory and sea floor spreading theory, understood? sea floor spreading theory. नीचे से हवा आता है, थोड़ा ऊपर रखो. Why are you too much selfish? सब कुछ है ये ना? Theory, origin, interior, theory. After that we have discussed what we have discussed. और क्या हुआ? हाँ, और क्या हुआ? मूवमेंट, प्लेट मूवमेंट, प्लेट टेक्टोनिक, जिसको हम क्या बोलते हैं? अर्थ मूवमेंट, अर्थ मूवमेंट हो गया ना? प्लेट टेक्टोनिक और अर्थ मूवमेंट बोलते हैं, जिसको टू टाइप ऑफ मूवमेंट होता है ना, कन्वर्जन मूवमेंट एंड डाइवर्जन मूवमेंट, याद है ना? कन्वर्जन बाउंड्री क्रिएट होता है, और क्या बाउंड्री क्रिएट होता है? डाइवर्जन बाउंड्री क्रिएट होता है, याद है ना? और एक क्या बाउंड्री फॉर्म होता है? ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, अंडरस्टैंड? याद है ना? Three type of boundary were formed due to the earth movement. One is convergent boundary, another one is divergent boundary, and another one is transform boundary. ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, transform boundary, understood? So we have discussed the different type of earth movement. This is the plate tectonic movement. So that the different activity due to the in the interior of earth. One activity is activity, कौन सा activity है? पहला activity क्या है? Volcanism, understood? Volcanism. And the second activity is earthquake. इंडिया में वोल्केनिज्म खत्म हो गया, हाँ, सीडीएस में नहीं हुआ, क्योंकि सीडीएस काल नहीं था क्लास में, तो मैं एनडीए में खत्म कर दिया. हाँ, सीडीएस सब कंबाइन है आज,
So now we'll discuss the volcanism and earthquake. Understood? Volcanism and earthquake. After that we'll discuss. We'll start the climatology. Understood? सोलर सिस्टम हो गया ना? सोलर सिस्टम हो गया? सोलर सिस्टम हो गया ना? हो गया, मैंने तो कंप्लीट उस क्लास में हुआ था ना. Volcanic activity and earthquake. Last class we have also already discussed in India version. What is volcanism? What is volcanism? बोलो, हिंदी वाले बोलो. What is volcanism? बोलो बोलो. Eruption of, release of, जैसे release बोलो भाई, eruption बोलो, release of energy in the form of, in the form of, जैसे in the form of lava from कहाँ से? From, in the form of lava from asthenosphere. Asthenosphere. Release of energy in the form of lava from asthenosphere. तो इसको क्या बोलते हैं? वोल्केनिज्म बोलते हैं. सिमिलरली इसको क्या बोलते हैं? वोल्केनिज्म बोलते हैं. अंडरस्टूड? क्योंकि लास्ट क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस है. क्या है? एनडीए के क्लास में नहीं था. सब तो एनडीए का है. यहाँ पे सीडीएस का ऑप्शन है बहुत. एक मिनट पूरा ये कर देंगे. लिथोस. फर्स्ट पार्ट इज लिथोस्फीयर. सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट इज एस्थेनोस्फीयर. लिथोस्फीयर बाद में क्या है? एस्थेनोस्फीयर. सो लिथोस्फीयर क्या है पूरा? लिथोस्फीयर क्या है पूरा? सॉलिड है. एस्थेनोस्फीयर क्या है? सेमी फ्लूइड है. अंडरस्टूड? पूरा कंप्लीट फ्लूइड नहीं है, सेमी फ्लूइड है. अंडरस्टूड? लिथोस्फीयर फुल सॉलिड है, एस्थेनोस्फीयर सेमी फ्लूइड है. तो लिथोस्फीयर में कौन सा पार्ट है? इंटीरियर का, आर्क का इंटीरियर का कौन सा पार्ट है? पहला वाला पार्ट कौन सा है? क्रस्ट. लिथोस्फीयर में पहला वाला पार्ट कौन सा है? क्रस्ट. अंडरस्टूड? फ्रॉम 0 किलोमीटर to 100 किलोमीटर क्रस्ट है. एंड यहाँ पे क्रस्ट है यार. अपार 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 कौन सा पार्ट? अपार मेंटल. अंडरस्टूड? क्रस्ट here is अपार मेंटल. एंड एस्थेनोस्फीयर का ऊपर वाला पार्ट कौन सा है? लोअर मेंटल. लोअर mental. And the second part is upper cool. This part is basically semi fluid. सेमी फ्लूइड. और जिसको हम क्या बोलते हैं ज्योग्राफिकल टर्म में? जिसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं जिसको हम? मैग्मा और लावा. क्या बोलते हैं? मैग्मा और लावा बोलते हैं उसको. मैग्मा. मैग्मा जो कौन सा है? दिस इज सेमी फ्लूइड. ये क्या है? सेमी फ्लूइड है. अंडरस्टूड? सेमी फ्लूइड है. मैग्मा इज द सेमी फ्लूइड. और इसका और एक नाम क्या है? मोल्टेन रॉक. मोल्टेन रॉक भी बोलते हैं. मेल्टेड रॉक. अंडरस्टूड? मेल्टेड रॉक. तो यहाँ पे क्या होता है? इन द एस्टोनोस्फेयर पार्ट, इन द एस्टोनोस्फेयर पार्ट जो क्या होता है? पूरा सेमी फ्लूइड होता है. अंडरस्टूड? वहाँ पे क्या होता है? हाई टेम्परेचर. ड्यू टू हाई टेम्परेचर यहाँ पे पूरा टेम्परेचर हाई हो जाता है. और यहाँ पे क्या होता है? लो टेम्परेचर जोन क्रिएट होता है. अंडरस्टूड? तो बेसिकली यहाँ पे पूरा हाई टेम्परेचर जोन क्रिएट हुआ. यहाँ पे क्या हो गया? लो टेम्परेचर जोन क्रिएट हुआ. अंडरस्टूड? यहाँ पे पूरा हाई टेम्परेचर और यहाँ पे लो टेम्परेचर. तो इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाएगा? टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाएगा? बहुत
ज्यादा हो जाएगा। अंडरस्टूड। टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर डिफरेंस इन लोगों का क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर यहाँ पे कौन सा प्रेशर जोन क्रिएट होगा, लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा। हाई टेम्परेचर मीन्स लो प्रेशर, यहाँ पे क्या प्रेशर जोन क्रिएट होगा, लो लो प्रेशर लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा। और यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू द लो टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर जोन क्रिएट होगा। सो यहाँ पे क्या है, सेमी फ्लूइड है, मोल्टन रॉक है, और यहाँ पे क्या है, ऊपर जो क्रास्ट है, पूरा क्रास्ट क्रास्ट इज डिवाइडेड इनटू सम क्रास्ट इज डिवाइडेड इनटू सम प्लेट। यहाँ पे प्लेट है ना, फॉर एग्जांपल ये ओसेनिक प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ओसेनिक प्लेट है, अंडरस्टूड। फॉर एग्जांपल है, क्रास्ट इज डिवाइडेड इनटू सम प्लेट। तो जब यहाँ पे पूरा लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा और हाई टेम्पर टू द हाई टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा, तो वहां पे जो सेमी फ्लूइड मटेरियल है वो मोल्टन रॉक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्मा। तो वो लो प्रेशर जोन से कौन से प्रेशर जोन में जाने का ट्राई करेगा, हाई प्रेशर। लो प्रेशर जोन में उसका स्टेबिलिटी क्या है, लो होगा, ऑब्वियसली। केमिस्ट्री में याद है ना, केमिस्ट्री क्लास होगा ना केमिस्ट्री का, लो प्रेशर जोन में क्या थर्मोडायनेमिक्स, या थर्मोडायनेमिक्स में हुआ था ना प्रेशर इंडस्ट्री। लो प्रेशर जोन में क्या होता है, लो प्रेशर जोन में कोई एक पार्टिकल का, फ्लूइड हो, सॉलिड हो, गैसियस पार्टिकल का, उसका क्या होता है, स्टेबिलिटी कम होता है। अंडरस्टूड। क्योंकि जो गैसियस पार्टिकल वो कहाँ रहता है, लो प्रेशर जोन में रहता है, क्योंकि उसका जो एलिमेंट है, उसका जो इलेक्ट्रॉन है, एटॉम पार्टिकल है, उन लोगों का स्टेबिलिटी रहता है क्या, नहीं रहता है। सो जो सेमी फ्लूइड मटेरियल है जिसका नाम क्या है, मैग्मा है, वो यहाँ पे लो प्रेशर जोन में वो पूरा अनस्टेबल है। सो ये लो प्रेशर जोन से कहाँ जाने का ट्राई करता है, कहाँ जाने का ट्राई करता है, हाई प्रेशर जोन में जाने का ट्राई करते हैं। तो वहां पे एक क्या क्रिएट होगा, एक फोर्स क्रिएट होगा ना, एंड दिस फोर्स इज नोन एज, क्या फोर्स है उसका नाम, जब वो सेमी फ्लूइड और मैग्मा जब हाई प्रेशर लो प्रेशर जोन से हाई प्रेशर जोन में जाने का ट्राई करेगा, तो वहां पे एक फोर्स क्रिएट होगा, वहां पे एक क्या क्रिएट होगा, एक फोर्स क्रिएट होगा, जिस फोर्स का नाम क्या है, फोर्स का नाम क्या है, कन्वेक्शनल फोर्स। अंडरस्टूड। एस्टोनोस्फेरिक कन्वेक्शनल फोर्स और मैग्मा कन्वेक्शनल फोर्स बोलते हैं उसका। अंडरस्टूड। मैग्मा 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 कन्वेक्शनल फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मैग्मा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पूरा मैग्मा है, पूरा सेमी फ्लूइड है जिसको हम मैग्मा बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, एक कन्वेक्शनल फोर्स क्रिएट होगा, ऊपर से पूरा ऐसे फोर्स क्रिएट होगा। तो ड्यू टू दिस फोर्स ये मैग्मा कहाँ चला जाएगा, इधर से जाके यहाँ पे पूरा दो प्लेट के बीच में एक गैप है ना, तो यहाँ पे जाके और जाके पूरा ऊपर आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, इस एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे, वोल्केनिज्म बोलेंगे। अंडरस्टूड। याद होगा, इस एक्टिविटी का नाम क्या है, वोल्केनिज्म। अंडरस्टूड। लो प्रेशर जोन से हाई प्रेशर जोन में जाने के लिए जो फोर्स क्रिएट होगा, इस फोर्स का नाम क्या होगा, मैग्मा कन्वेक्शनल फोर्स। क्यों ये फोर्स क्रिएट हुआ, क्योंकि यहाँ पे नीचे एस्टोनोस्फेयर पे लो प्रेशर जोन है और क्रैश में क्या है, हाई प्रेशर जोन। क्यों हाई प्रेशर जोन है, क्योंकि एस्टोनोस्फेयर में पूरा हाई टेम्परेचर क्रिएट होना, क्योंकि दिस रीजन वहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर बेल्ट का क्रिएशन होगा। अंडरस्टूड। सो मैग्मा यहाँ से सेमी फ्लूइड और जिसको हम मैग्मा बोलते हैं, वो यहाँ से ड्यू टू दिस करंट वो ऊपर चला जाएगा। अंडरस्टूड। पूरा ऊपर चला जाएगा, और उस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, इस पूरा एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, वोल्केनिज्म। अंडरस्टूड। और यहाँ पे बाउंड्री टू टाइप का होता है। बाउंड्री कितना टाइप का होता है, बाउंड्री कितना टाइप का है, टू टाइप, बेसिकली थ्री टाइप है, बट all over the world basically we consider there are major two type boundary. One is ring of fire. किसने बोला, ring of fire is the example of boundary. Understood. Ring of fire is the example of convergent boundary. Understood. याद था ना, we'll discuss है। Divergent bound, one is divergent boundary and another one is con convergent boundary। कहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी ज्यादा है, कौन कहाँ पे ज्यादा होगा बोलो, यहाँ पे पूरा पूरा बल्कि पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब यहाँ से पूरा स्टार्ट होगा ना वर्ल्ड ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी का जो एक्टिविटी है इंटीरियर से पूरा, क्लाइमेटोलॉजी हो या ओशनोग्राफी हो, पूरा क्या है टेक्निकल चैप्टर है।
तो पूरा यहाँ पे साइंस रिलेटेड, अंडरस्टूड, प्रेशर टेम्परेचर पूरा रिलेट होगा, अंडरस्टूड। क्लाइमेटोलॉजी तो पूरा टेम्परेचर है, क्यों वहाँ पे क्यों रेनफॉल ज्यादा है, यहाँ पे क्यों कम है, ऑल अबाउट रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी रिलेटेड, अंडरस्टूड। तो क्यों व्हाई डाइवर्जन कन्वर्जन बाउंड्री में वोल्केनिज्म क्यों ज्यादा है, कन्वर्जन बाउंड्री में वोल्केनिज्म क्यों ज्यादा है, ड्यू टू ड्यू टू सबडक्शन, याद है ना, कन्वर्जन बाउंड्री में एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर क्या हो जाता है, सबडक हो जाता है ना, सबडक्शन हो जाता है ना। तो ये एक प्लेट है, इसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और ये एक प्लेट है, इसका डेंसिटी बहुत कम है। तो जिसका डेंसिटी ज्यादा है वो कम वाला डेंसिटी के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ड्यू टू यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है ना, हाई प्रेशर, नीचे क्या है, लो प्रेशर जोन है, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, नीचे लो प्रेशर जोन है, ऊपर क्या हो रहा है, हाई प्रेशर। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या होगा, मूवमेंट होगा। पहले कहा था, पहले लो प्रेशर जोन डायरेक्ट क्रैश के ऊपर था, हाई प्रेशर जोन कहाँ पे था, एकदम क्रैश के ऊपर था। अभी जब जहाँ पे सबडक्शन हुआ है वहां पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो गया, तो मैग्मा का इजीली मूवमेंट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे जो मैग्मा का मूवमेंट के वजह से जो वोल्केनिज्म होता है, वोल्केनिक एक्टिविटी होता है, वो पूरा वायलेंट वोल्केनिक एक्टिविटी होता है। ड्यू टू दिस रीजन, ड्यू टू दिस वोल्केनिक एक्टिविटी, जो कन्वर्जन बाउंड्री में जो वोल्केनिक एक्टिविटी होता है वहां पे वायलेंट वोल्केनिक एक्टिविटी होता है। फॉर दैट क्या होता है, माउंटेन फॉर्मेशन हो जाता है, अंडरस्टूड, क्या फॉर्मेशन होता है, माउंटेन फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल हिमालय, हिमालय माउंटेन ना, हिमालय माउंटेन इज फॉर्म, जैसे हिमालय का कौन सा माउंटेन है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय कैसे फॉर्म हुआ, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के अंदर सबडक हो गया, तो वहां पे हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट हुआ ना, और नीचे क्या है, लो प्रेशर बेल्ट। तो यहाँ पे एक वायलेंट वोल्केनिक इरप्शन हुआ, ड्यू टू दिस वायलेंट वोल्केनिक इरप्शन क्या फॉर्म हो गया, ट्रांस हिमालय फॉर्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल और एक है, ये क्या है, पैसिफिक, फॉर एग्जाम्पल दिस इज पैसिफिक बेल्ट। पैसिफिक बेल्ट को हम क्या बोलते हैं, प्लेट को हम क्या बोलते हैं, जिसका बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। सो दिस इज पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट जब साउथ अमेरिका के प्लेट में जब सबडक्ट हो गया, तो वहां पे एक माउंटेन क्रिएट हुआ, जिस माउंटेन का नाम क्या है, एंडीज माउंटेन, नाम सुना है ना, एंडीज माउंटेन। तो ये कुछ एग्जाम्पल है वोल्केनिक एक्टिविटी एट कन्वर्जन बाउंड्री में। जो वोल्केनिक एक्टिविटी होता है वो वायलेंट वोल्केनिक एक्टिविटी होता है, उसका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होता है इन कंपेयर टू डाइवर्जन बाउंड्री, अंडरस्टूड। सो ये तो लिख लो यहाँ पे है, सब याद नहीं रखना चाहिए, जस्ट कुछ लिख लो। वहां पे एक फोर्स क्रिएट होगा, वहां पे एक क्या क्रिएट होगा, फोर्स। फोर्स का नाम क्या है, मैग्मा कन्वेक्शनल फोर्स और करंट बोलते हैं, मैग्मा कन्वेक्शनल कन्वेक्शनल करंट बोलते हैं उसको, और फोर्स भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे एक फोर्स क्रिएट होगा। So this process is known as volcanism. Understood? This process is known as volcanism. And it is a seismic activity at the interior of Earth. Earth के interior में होता है. Understood? बहुत गर्म है. हो गया? Done? ये लिखना है, ये सब लिखना है. ये लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर है. ये क्या है? ये स्टेनोस्फीयर है. लिथोस्फीयर नीचे वाला पार्ट क्या है? स्टेनोस्फीयर. अंडरस्टूड? कल पढ़ाया था ना. हाँ, वो सीडीओ साला नहीं था, वो भी नहीं, वो तुम एनडीओ ना, कल क्यों नहीं था? हाँ हाँ, घर गए, इस साल एग्जाम दो देंगे, घर क्यों जा रहे हो, घर क्यों जा रहे हो? तुम घर जाते हो, घर नहीं जाते? हाँ, घर मत तो, हाँ, लास्ट क्लास तो अटेंड नहीं किया,
घर गया। कहाँ है घर? बादशाह। दूसरा। हाँ? कामा सिंह। लास्ट क्लास कहाँ पे था? कौन सा बेंच? लास्ट क्लास अटेंड किया? सीडीएस और सीडीएस सीडीएस। सीडीएस 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 लास्ट क्लास। तो नागालैंड वाला कहाँ है? कुंटू। हाँ हाँ हाँ। लावा में इट मैग्मा टू सोर्स कंट्रीब्यूट लावा मैग्मा। लावा मैग्मा टू सोर्स चेक करो। हाँ दिस उल्टा लिख लिया। यहाँ पे आने के बाद उसका नाम क्या हो जाता है? मैग्मा हो जाता है। At the asthenosphere, this semi-fluid and molten rock is known as lava. When it reach at the crust, it's known as magma. Understood. तो यहाँ पे लिख लो, वो एक नोट्स लिख लो, कल लिखा ही दिया था। वो उल्टा बोल रहा था। तुम ही बोला था उल्टा। सो सेमी फ्लूइड, ये लिखना सेमी फ्लूइड और मोल्टेन रॉक। सेमी फ्लूइड जिसको क्या बोलते हैं, मोल्टेन रॉक भी बोलते हैं। एट एस्थेनोस्फेयर, एट एस्थेनोस्फेयर इज नोन एज लावा। अंडरस्टूड। जो सेमी फ्लूइड है, जो सेमी फ्लूइड और मोल्टन रहेगा, जो एस्थेनोस्फेयर में जब रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? लावा। जब वो सेमी फ्लूइड ड्यू टू दिस मैग्मा कन्वेक्शनल करंट की वजह से जब वो सेमी फ्लूइड अर्थ के क्रस्ट में चले जाएगा तब उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्मा। अंडरस्टूड। जब वो एट क्रास्ट उसका नाम क्या हो जाएगा? मैग्मा। और वहां पे जाके मैग्मा का क्या स्टार्ट हो जाता है? मैग्मा का सोलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है। ड्यू टू दिस सोलिडिफिकेशन यहाँ पे किसका फॉर्म होता है? सोइल का फॉर्म होता है। और क्या फॉर्म होता है? सोइल और क्या फॉर्म होता है? रॉक फॉर्म होता है। अंडरस्टूड। जहाँ पे सिलिका का कंटेंट ज्यादा है वहां पे क्या फॉर्म होगा? सोइल फॉर्म होगा। और जहाँ पे सिलिका का कंटेंट कम है वहां पे क्या फॉर्म होगा? रॉक। अंडरस्टूड। सेडिमेंटरी रॉक, याद है ना? मेटामॉर्फिक रॉक और क्या है? इग्नियस, याद है ना? वो उल्टा लिखा। कल के क्लास में वो उल्टा लिखा। ठीक है। कितने अच्छा से लिख रहे थे? उल्टा कर दिया। उल्टा था। नहीं तो काल उल्टा लिखा। लावा बाहर है, लावा बाहर। काल उल्टा लिखा हुआ है, लिख लो। ठीक करो। ठीक करो। कब आए तुम? हो गया ना? डन। दिस प्रोसेस इज नोन एज वोल्केनिज्म। पिक्चर कहाँ है तुम्हारा? हो गया। तो यहाँ पे जो मैंने बोला वहाँ पे वो लिखा है। अंडरस्टूड। जो अभी स्टार्टिंग में जो बोला यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। Eruption of the liquid or molten rock from the surface of the earth is known as volcanism. surface नहीं, इंटीरियर होगा। हाँ, उल्टा लिखा है। Eruption of the liquid और molten rock जिसको हम क्या बोलते हैं?
मैग्मा बोलते हैं और क्या बोलते हैं? लावा नहीं, मैग्मा बोलते हैं, मोल्टेन रॉक बोलते हैं, सेमी फ्लूइड नेचर है। सो इरप्शन ऑफ द सेमी फ्लूइड और लिक्विड और मोल्टेन रॉक फ्रॉम द एस्टोनोस्फेयर ऑफ द अर्थ सरफेस मत लिखो, यहाँ पे क्या लिखो? एस्टोनोस्फेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज वोल्केनिज्म। द मोल्टेन रॉक इज कॉल्ड मैग्मा। मैग्मा है, बाहर जाके वो क्या हो जाएगा? लावा हो जाएगा। The eruption of lava from the internal part of the earth is known as volcanism. It is caused due to the internal heat of the earth. Understood? Heat मतलब क्या? एस्टोनोस्फेयर पे क्या होता है? हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है। हीट हीट होता है ना? हीट कैसे फॉर्म होता है? ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर के वजह से वहां पे क्या होगा? लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा। अंडरस्टूड? और लो प्रेशर से एक मटेरियल कहाँ जाना ट्राई करता है? हाई प्रेशर जोन में जाना ट्राई करता है। सो ड्यू टू दिस रीजन क्या होता है वहां पे? वोल्केनिज्म होता है। अंडरस्टूड? सो वोल्केनिज्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेंटल ऑफ द अर्थ। अंडरस्टूड? वोल्केनिज्म कहाँ से होता है? मेंटल से होता है। द मेंटल इज द सेकेंडरी क्रस्ट ऑफ द अर्थ। मतलब क्रस्ट के नीचे वाला पार्ट क्या है? मेंटल है। मेंटल से स्टार्ट होता है। द वोल्केनिक इरप्शन इज कोज्ड ड्यू टू द डिफरेंट रीजन सच एज मैग्मास इंटरेक्शन विथ वाटर। वाटर के साथ इंटरेक्शन वो होगा तो वहां पे भी एक रीजन है, वहां पे हम डिस्कस करें, कोज डिस्कस करें किस लिए होता है। कल का वाला पीपीटी डिफरेंट था ना? वो पीपीटी डिफरेंट डिफरेंट पीपीटी लगा रहा है। इतना पीपीटी कब फॉर्म हुआ है? तो मेरा वाला नहीं है। कल का वहाँ पे पॉइंट वाइज था, यहाँ पे पॉइंट वाइज नहीं है। लिख लो और कुछ नहीं है। सो पहला वाला कोज क्या होगा? फास्ट कोज क्या होगा? हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। पहला वाला रीजन क्या होगा? पहला वाला रीजन क्या होगा? कोज फॉर द पहला वाला रीजन क्या होगा? टेम्परेचर। पहला वाला रीजन क्या होगा? टेम्परेचर रीजन कोज फॉर द वोल्केनिज्म। अंडरस्टूड? वोल्केनिज्म का पहला वाला कोज क्या होगा? टेम्परेचर डिफरेंस। द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ इज हाई दैट कोजिंग द रॉक टू गेट मोल्टेन। जब अंदर में टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो वहां पे क्या फॉर्म होगा? मैग्मा फॉर्म होगा। अंडरस्टूड? मैग्मा फॉर्म होगा। द रॉक व्हेन मोल्टेन एंड कन्वर्टेड इनटू ए लिक्विड और सच सेमी फ्लूइड फॉर्म्स द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस। तो नीचे में क्या होगा? उसका वॉल्यूम तो ज्यादा हो जाएगा ना। पहले क्या था? रॉक था। जब वहां पे हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो वो रॉक क्या हो जाएगा? मेल्टेन रॉक में फॉर्म हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। सब उसका वॉल्यूम क्या? वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और वहां पे ड्यू टू द हाई टेम्परेचर वहां पे क्या फॉर्म हो रहा है? लो प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है। अंडरस्टूड? हाई टेम्परेचर वहां पे लो प्रेशर जोन क्रिएट। सो ड्यू टू द हाई वॉल्यूम ऑफ मैग्मा, हाई वॉल्यूम ऑफ मैग्मा एंड द लो प्रेशर जोन एट द एस्टोनोस्फेयर। तो वो मैग्मा कहाँ से नीचे से ऊपर आ जाएगा ड्यू टू ए फोर्स नोन एज मैग्मा convectional force. So the molten substance is light in weight and thin in comparison to the adjoining rock. ये important नहीं है तुम लोग के लिए है, क्योंकि तुम लोग का एग्जाम में क्या आता है? ये important नहीं है। ये एक इसके लिए इम्पोर्टेंट, ये जो सिविल सर्विस का एग्जाम दोगे तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट है मेंस के लिए। अंडरस्टूड? सो कोज ऑफ वोल्केनिज्म तुम लोगों के वो सीडीएस में आ सकता है, इसलिए मैंने किया। सीडीएस में कैसा आएगा? आएगा नीचे वाला कौन सा वोल्केनिज्म के लिए रीजन है? फ्रूटफुल कॉज है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे पास 4 रीजन दे देगा, वहाँ पे 1 रीजन इज नॉट सुटेबल होगा। अंडरस्टूड? तो 1 2 3 2 3 4 आया ना क्वेश्चन ऐसा है। सॉरी, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर सेकंड क्या होगा? लो प्रेशर जोन टू हाई प्रेशर, ऐसे लिख लो। हाँ, लो प्रेशर कहाँ पे है? एस्टोनोस्फेयर, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। हाई प्रेशर कहाँ पे क्रिएट होता है? क्रैश पे क्रिएट होता है। So the magma, that is the molten rock, then tends to the rise up into the surface of the earth. तो molten rock कहाँ पे जाता है? राइज कहाँ पे होता है? राइज अप टू द सरफेस। ऑलरेडी डिस्कस किया। अंडरस्टूड? कि जो फोर्स है उसका नाम क्या है? मैग्मा कन्वेक्शनल फोर्स। ड्यू टू द डेंसिटी इशू ऑफ द मैग्मा इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ, द मैग्मा कम्स आउट ऑफ द अर्थ सरफेस। अंडरस्टूड? वो डेंसिटी भी डिफरेंस होता है, बाहर जब निकल जाता है उसके क्या होता है? ड्यू टू द लो टेम्परेचर। क्रश में क्या है? टेम्परेचर लो टेम्परेचर है। तो लो टेम्परेचर के वजह से वहां पे क्या होता है? जो मैग्मा था अंदर में, जो मैग्मा था वो क्या कौन सा नेचर में था? सेमी फ्लूइड नेचर में। जो ऊपर जाएगा तो वो कैसा नेचर हो जाएगा? सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा। सॉलिडिफिकेशन मतलब सॉइल और रॉक फॉर्मेशन होगा। वो पहले क्या था? एकदम पहला वाला स्टेज में वो क्या था? रॉक था।
ड्यू टू द हाई टेम्परेचर वो क्या फॉर्म हो उसका, मोल्टेन रॉक, जिसको हम मैग्मा बोलते हैं। बाद में जो मैग्मा ऊपर चला जाएगा फिर से वो क्या फॉर्म होगा, रॉक फॉर्म होगा और सॉइल फॉर्म होगा। अंडरस्टूड। सो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से वो फॉर्म होता है। अंडरस्टूड। द इंटरेक्शन ऑफ द मैग्मा विद द वाटर इज अनदर कॉज ऑफ वोल्केनिज्म। वाटर के साथ जब ये वाला सेकेंड रिज्म है, सेकेंड रिज्म क्या क्या है, इंटरेक्शन विथ, इंटरेक्शन विथ वाटर, इंटरेक्शन विथ वाटर बाय मैग्मा। जब एस्टोनोस्फेयर में मैग्मा एंड वाटर का इंटरेक्शन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, और अनदर रीजन है क्योंकि जब वहाँ पे ऑलरेडी क्या है, रॉक मोल्टेन हो गया, लिक्विड फॉर्म में चला गया, फिर से वाटर भी ऐड हो रहा है। वाटर क्या फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। सो उसका ऑलरेडी वॉल्यूम पहले से ज्यादा हो गया, फिर से वाटर ऐड होने की वजह से और वॉल्यूम ऐड है। सो ऑब्वियसली जो पहला वाला जो कन्वेक्शनल मैग्मा कन्वेक्शनल फोर्स था, पहला जितना था उसका फोर्स ज्यादा हो जाएगा ड्यू टू द हाई वॉल्यूम। अंडरस्टूड। So magma consists of different type of gases. When it comes in the contact with water, there is an interaction that result in the eruption. Understood? Gaseous वहाँ पे chemical reaction होता है। The pressure of the molten rock when it interacts with the water rise and result in the eruption. Understood? क्योंकि pressure की rise होगा, प्रेशर के, प्रेशर मतलब फोर्स। अंडरस्टूड। कन्वेक्शनल फोर्स जो है, जाने का जो प्रेशर है उसका क्यों राइज होगा, क्योंकि ऑलरेडी मोल्टेन रॉक का वॉल्यूम ज्यादा हो गया। पहले वो रॉक था, आफ्टर दैट जब वो मोल्टेन हो गया तो उसका वॉल्यूम ज्यादा हो गया, और वहाँ पे आके वाटर भी ऐड हो गया, वाटर के साथ इंटरेक्शन हो गया। फॉर दैट रीजन वॉल्यूम ज्यादा हो गया। वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, जो उसका कन्वेक्शनल फोर्स है, जो प्रेशर है ऊपर जाने का जो प्रेशर है, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। अंडरस्टूड। सो ये वाला सेकंड रीजन है, इंटरेक्शन विथ वाटर बाय मैग्मा। ये दो रीजन है, याद रखना। अंडरस्टूड। दो रीजन है, याद रखना। सो ड्यू टू द प्रेशर रीजन यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, कन्वेक्शनल करंट है, कन्वेक्शनल करंट क्रिएट होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्शनल करंट। हो गया, कहाँ जाना है। व्हाट, व्हिच वन है हायर प्रेशर, हायर प्रेशर एट अर्थ सरफेस क्रस्ट। क्योंकि एस्टोनोस्फेयर पे क्या होता है, कोर, कोर इट्स नॉट एस्टोनोस्फेयर, इट्स कोर। कोर में क्या होता है, कोर में पूरा सॉलिड होता है ड्यू टू द सॉलिड नेचर। इनर कोर में वहाँ पे हाई प्रेशर जोन होता है, वहाँ पे हम अर्थक्वेक जब डिस्कस करेंगे देन विल डिस्कस। कोर में पूरा हाई प्रेशर जोन है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे देखो अर्थ का इंटीरियर देखो, यहाँ पे अर्थ का इंटीरियर देखो, प्रेशर बेल्ट इन अर्थ इंटीरियर, प्रेशर बेल्ट इन अर्थ इंटीरियर यहाँ पे देखो। ये देखो, ये क्या है, क्रस्ट। ये क्या है, मेंटल। ये क्या है ना। तो यहाँ पे क्या है, हाई, हाई प्रेशर जोन। यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर जोन। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, अर्थक्वेक का जो, अर्थक्वेक का दो वेव होता है ना, एक सेकेंडरी वेव होता है, वो एक प्राइमरी वेव होता है। तो सेकेंडरी प्राइमरी दोनों वेव यहाँ पे मेंटल में मूवमेंट कर सकता है। अंडरस्टूड। ड्यू टू द लो प्रेशर। अंडरस्टूड। सो कोर में क्या होता है, कोर में फिर से क्या होता है, हाई प्रेशर जोन का क्रिएट होता है, याद रखना है। प्रेशर बेल्ट इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ। अंडरस्टूड। तुमने जो दिखाया था वो कोर का था, हाई प्रेशर एट कोर। फिर से वो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी रहता है, अंडरस्टूड, मेल्टन नहीं रहता है वहाँ पे, पूरा सॉलिड होता है ना। ड्यू टू द हाई डेंसिटी वहाँ पे प्रेशर बेल्ट बहुत ज्यादा होता है। अंडरस्टूड। टेम्परेचर भी हाई होता है, प्रेशर बेल्ट भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, मतलब पूरा सॉलिड होता है, आयरन और बहुत ज्यादा होता है। अंडरस्टूड। हाँ, मेंटल और क्रस्ट में क्या होता है, जो अपर मेंटल होता है, और जो अपर मेंटल और जो क्रस्ट के नीचे वाला पार्ट है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, और आउटर कोर में जो तीनों पार्ट है, वहाँ पे गैसियस पार्टिकल बहुत ज्यादा है। सो ड्यू टू दिस रीजन वहाँ पे सेमी फ्लूइड सर का एक स्टेप क्रिएट होता है, वहाँ पे एक लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है, और टेम्परेचर अप डाउन है, क्योंकि एकदम ऊपर जो अपर
आप क्रश के नीचे वहाँ पे टेम्परेचर लो है, जितना नीचे जाओगे उतना टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। क्रश टेम्परेचर होगा, किंतु बाद में क्या है, जो प्रेशर बेल्ट है, प्रेशर बेल्ट का मतलब डायरेक्टली ग्रेजुअली राइज नहीं, स्लो नहीं होता है, डिक्रीज नहीं होता है, क्योंकि क्रैश में लो है, फिर से मेंटल, क्रैश में हाई है, मेंटल में क्या है, लो है, फिर से कोर में वो प्रेशर आयरन और बहुत ज्यादा है, अंडरस्टूड, आयरन का डिपॉजिट बहुत ज्यादा है वहाँ पे, जितना भी टेम्परेचर राइज हो जाए, लेकिन आयरन का क्या होता है, वहाँ पे मॉल्टन नहीं होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, अंडरस्टूड। सो ड्यू टू वहाँ पे मॉल्टन नहीं होता है, हाई टेम्परेचर होने की वजह से वहाँ पे डेंसिटी हाई है, सो ड्यू टू दिस रीजन वहाँ पे हाई प्रेशर बोल्ट क्रिएट होता है। हाँ, और टेम्परेचर हाई है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हाई मेल्टिंग पॉइंट है ना उस पार्टिकल का, सॉलिड पार्टिकल का। या ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, कहाँ है अर्थक्वेक में डिस्कस करेंगे। Volcanic eruption are caused by the several factors, primarily involve the movement and behavior of magma, मैग्मा के वजह से, मैग्मा प्रेशर के वजह से, पहला वाला पहला वाला फैक्टर क्या है, मैग्मा प्रेशर, मैग्मा प्रेशर जो कन्वेक्शनल करंट है ना, उसको मैग्मा प्रेशर भी बोलते हैं, मैग्मा प्रेशर, द बिल्डअप ऑफ प्रेशर फ्रॉम द मैग्मा इन द मैग्मा चैम्बर कैन फोर्स द मैग्मा टू राइज थ्रू द क्रैक इन द अर्थ सरफेस। क्रैक को हम क्या बोलते हैं, जो क्रैक है वो बाउंड्री है, बाउंड्री है, divergent boundary, it may be divergent, convergent, transform boundary, understood? So build up of pressure in the form of magma from the magma in the magma chamber can force the magma to rise through a crack in earth crust. So ये magma pressure को हम क्या बोलते हैं, convectional convectional current बोलते हैं, understood? magma convectional current बोलते हैं। So this pressure is often due to the accumulation of gases within magma, हाँ? टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, सेकंड रीजन क्या है, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, ये डायरेक्ट सीडीएस के एग्जाम में पूछ देगा, अंडरस्टूड, सीडीएस के एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देगा, कैसे पूछेगा, व्हिच वन ऑफ द आर सुटेबल कोज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी, अंडरस्टूड, व्हिच आर द सुटेबल कॉज फॉर वोल्केनिज्म, ऐसे डायरेक्ट सीडीएस में क्वेश्चन पूछेगा, एनडीए के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो यू कैन अवॉइड है, बट याद रखना चाहिए कैसे फॉर्म होता है। सो टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट के वजह से, जैसे कन्वर्जन में क्या होता है, कन्वर्जन में बहुत ज्यादा होता है, हाई वोल्केनिक एक्टिविटी होता है ड्यू टू दिस सबडक्शन, और डाइवर्जन में क्या होता है, लो इंटेंसिटी का वोल्केनिक एक्टिविटी होता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, डाइवर्जन होता है, तो ऑटोमेटिक डायरेक्टली वहां पे निकल आएगा, सो इतना फोर्स भी नहीं होता, तो ड्यू टू लो प्रेशर की वजह से वो नीचे ऊपर आ जाएगा ना, सो इजीली वो सॉलिडिफिकेशन होगा, इतना वायलेंट एक्टिविटी नहीं होगा। द मोस्ट वोल्केनिक एक्टिविटी इज एसोसिएटेड विद द boundaries of tectonic plate eruption can occur at, understood? So यहाँ पे होता है, so divergent boundary where plate are moving apart, magma rises to fill the gap as seen in the mid oceanic ridge, याद है ना, mid oceanic ridge कहाँ पे होता है, कौन सा सी में बहुत ज्यादा है, अटलांटिक ओशन में बहुत ज्यादा है, अटलांटिक ओशन में बहुत ज्यादा है, मिड ओशनिक रिज कहाँ फॉर्म होता है, अटलांटिक, ये आएगा एनडीए में, मिड ओशनिक रिज कहाँ पे ज्यादा फॉर्म होता है, अटलांटिक ओशन, सो मिड ओशनिक रिज फॉर्म ड्यू टू कौन सा वाला बाउंड्री, डाइवर्जेंट, ये आएगा एनडीए में, अंडरस्टूड, एनडीए वाला क्वेश्चन यही है, अंडरस्टूड, सीडीएस में पूछेगा, ये भी पूछेगा सीडीएस में, लेकिन थोड़ा हाई लेवल नहीं होता, कुछ हाई लेवल नहीं होता है, थोड़ा स्टाइल चेंज करेगा, मतलब ऑप्शन में थोड़ा, मतलब एक एनडीए में एक ही वन लाइन से एक ही क्वेश्चन बनाएगा, लेकिन सीडीएस में 5 6 6 कंटेंट से एक ही क्वेश्चन बनाएगा, लो एंजॉय करो, हाँ। तो जैसे 100 क्वेश्चन में जो यूपीएससी का 100 क्वेश्चन है, वहाँ पे एक्चुअली 100 क्वेश्चन नहीं होते, वहाँ पे मोर देन 400 क्वेश्चन होते हैं, सब कंबाइन करके 100 क्वेश्चन बनाते हैं, स्टेटमेंट देते हैं ना, तो यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट कंबाइन हो जाते हैं, तो यहाँ पे नॉट 100 क्वेश्चन, यहाँ पे पूरा 400 300 क्वेश्चन रहते हैं, तो सिमिलरली सीडीएस में ऐसे होता है। कल एक क्वेश्चन सीडीएस का उस दिन पीवाई के दिखाया ना, टी प्लांटेशन के लिए कैसे टेम्परेचर, कैसे क्लाइमेट, कैसे जैसे, तो यहाँ पे तुम खाली ओनली टेम्परेचर पढ़ने से नहीं होगा, सॉलिड सोइल भी पढ़ना पड़ेगा, सब पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था क्या, 4 5 क्वेश्चन कंबाइन करके, लेकिन वो एनडीए के लिए वो 4 5 क्वेश्चन है, बट सीडीएस के लिए एक क्वेश्चन है, यही डिफरेंस है कंपटीशन का, बाकी सब सेम है, अंडरस्टूड।
तो और पूरा डेप्थ में आता है क्वेश्चन है, क्योंकि तुम लोग अभी मैच्योर हो गए ना, डेप्थ में जाना पड़ेगा, हाँ? वो लोग तो मैच्योर नहीं है, एनडी वाले हैं। डाइवर्जन बाउंड्रीज में वोल्केनिक एक्टिविटी होता है, मैग्मा राइजेस टू द फील्ड टू रिफिल द गैप। सो ऐसे डाइवर्जन बाउंड्री ऐसे होता है ना, यहाँ पे, यहाँ पे। सो ये प्लेट यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, इसका यहाँ पे मूवमेंट, सो बीच में क्या हो जाएगा, बीच में क्या होगा, गैप फॉर्म होगा ना। तो ये वाला प्लेट यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, वो प्लेट वहाँ पे मूवमेंट, तो बीच में क्या फॉर्म होगा, एक गैप फॉर्म होगा। तो ये गैप को फिल अप करना चाहिए ना, गैप को, नहीं तो सब ओशन का सब पानी अंदर जाएगा, हाँ? बाद में ओशन क्या हो जाएगा, ड्रोट, पूरा ड्रोट हो जाएगा ना। तो ये गैप फिल अप करना चाहिए ना, सो फॉर टू फिल अप दिस गैप, अंदर में जो मैग्मा है, सब मैग्मा वहाँ पे आ जाएगा, आके पूरा गैप फिल अप करेगा, और यहाँ पे एक माउंटेन टाइप फॉर्म होता है, जिसको क्या बोलते हैं, मिड ओशन रिज। बेसिकली डाइवर्जन कहाँ पे होता है, ओशन प्लेट में होता है बेसिकली, अंडरस्टूड। तो पे मिड ओशनिक रीज फॉर्म होता है, कॉन्टिनेंट में भी होता है। तो सबसे ज्यादा मिड ओशनिक रीज कहाँ पे है, अटलांटिक ओशन। सम एग्जांपल ऑफ मिड ओशनिक रीज इज आइसलैंड, याद है ना, आइलैंड, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, ये है, अंडरस्टूड। एंड द फेमस एग्जांपल ऑफ मिड ओशनिक रीज एट पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन में कौन सा है, पैसिफिक ओशन में मिड ओशनिक रीज है, सब तो अटलांटिक में नहीं है। देयर आर सम मिड ओशनिक रीज एट पैसिफिक ओशन आल्सो, हाँ। तो पैसिफिक ओशन में सबसे इंपॉर्टेंट मिड ओशनिक रीज इज हवाई आइलैंड, अंडरस्टूड। नाम याद रखना, हवाई आइलैंड, वहाँ पे बहुत ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी होता है। कल डिस्कस किया था, हवाई आइलैंड कहाँ पे है, कौन सा ओशन में, पैसिफिक ओशन में है, अंडरस्टूड। कन्वर्जन बाउंड्रीज फायर प्लेट कोलाइड, वन प्लेट इज फोर्स टू, मन सबडक्शन होता है, अंडरस्टूड, वन प्लेट इज फोर्स टू सबडक्ट अनदर प्लेट, ऐसा होता है ना। जैसे हम लोग का हिमालय फॉर्म होता, याद है ना, ये इंडियन प्लेट था ना, और ये क्या था, यूरेशियन, इंडियन प्लेट, और ये क्या था, यूरेशियन प्लेट। इंडियन प्लेट का डेंसिटी हाई था, ड्यू टू द हाई डेंसिटी ऑफ इंडियन प्लेट क्या हो गया, सबडक्ट हो गया, अंडरस्टूड। तो ये सबडक्शन के वजह से वहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो गया ना, यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो गया, क्योंकि ऊपर फोर्स किया ना। तो यहाँ पे जो मेटेरियल मैग्मा है, वहाँ पे एक हाई प्रेशर बेल्ट का क्रिएट हुआ, और थोड़ा नीचे क्या है, लो प्रेशर। तो मैग्मा का डायरेक्ट इतना भी कन्वेक्शनल फोर्स नहीं है, डायरेक्ट मैग्मा निकल के आ जाएगा ना। तो डायरेक्ट निकल के आ जाएगा, वहाँ पे क्या होगा, एक वायलेंट वोल्केनिक एक्टिविटी होगा। ये देखो, where the plate collide and one plate is forced to subduct each another, causing the melting and magma formation which can lead to eruption। ये वाला सबसे याद रखना, यहाँ पे लिख लेना, वायलेंट वोल्केनिज्म होता है, वोल्केनिक एक्टिविटी, वायलेंट वोल्केनिक एक्टिविटी। और यहाँ से क्या फॉर्म होता है, माउंटेन है, क्या फॉर्म होता है यहाँ से, माउंटेन फॉर्म होता है। जैसे डाइवर्जन, डाइवर्जन बाउंड्री से क्या फॉर्म होता है, मिड ओशनिक रीड्स का फॉर्म होता है, लेकिन कन्वर्जन से डायरेक्ट क्या फॉर्म होता है, माउंटेन फॉर्म होता है, अंडरस्टूड। समटाइम इट्स माउंटेन फॉर्म हो जाता है। तो ये बोलो, जो डाइवर्जन बाउंड्री में जो ओशन में क्या फॉर्म होता है, मिड ओशनिक रीज फॉर्म होता है, और कॉन्टिनेंट में क्या फॉर्म होता है, बोलो, कॉन्टिनेंट में क्या फॉर्म हो जाता है, लेक फॉर्मेशन, लेक फॉर्मेशन होता है, प्लेट डाइवर्स हो गया ना, वहाँ पे डायरेक्ट मैग्मा आके पूरा से लेक फॉर्मेशन हो जाए। जैसे एक लेक का नाम क्या है, कैस्पियन सी, नाम सुना ना, कैस्पियन, कैस्पियन सी बहुत बड़ा है, इसलिए उसको सी बोलते हैं, बट इससे लेक, अंडर वर्ल्ड का सबसे बड़ा लेक है, अंडर कैस्पियन सी। सो कैस्पियन सी इज ड्यू टू द डाइवर्जन ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट। कैस्पियन सी, कैप्सिकम बोल देना। कैप्सियन सी नाम सुना है कभी, नहीं सुना? वो नागालैंड वाला कहाँ है, एक महीने बाद आएगा। हम्म? वो ये रूम में क्या करता है पूरा दिन, हाँ,
पीजी में रहता है ना, पीजी में। हॉस्टल, ओ ये एकेडमी का पीजी में रहता है ना। वो एनडीए वाला लॉन्ग हेयर। हाँ, इज फ्रॉम नागालैंड। नॉट नॉट जुमका। वो दूसरा वाला था क्या? वो जुमका नहीं है वो। फ्रैंकी, फ्रैंकी। यस। बहुत डिफिकल्ट नाम है। असम वाला नाम अच्छा है। नहीं है। मतलब क्या फेमिलियर हो या या- तो यहाँ पे आप यहाँ बर्फ को पकड़ा हुआ है। अभी तो चेंज हुआ ना। हाँ, बोरा कोई क्या शॉर्ट शॉर्ट है, मतलब होता पहले कैसा कैसा बोरा बोरा था। हाँ? हाथी दोरा बोरुआ, हाँ। अंदर से घोड़ा दोरा बोरुआ, अभी तो टाइटल चेंज किया ना। और एक फेमस वाला था आसाम हिस्ट्री में। बोलो क्या? हाँ। आसाम हिस्ट्री में वो फेमस वाला एक सर्वेंट था जिसका नाम था गूधरा बोरुआ, हाँ। इट में सामवन है। वो गूधरा बोर्दोलो ही नहीं था, बोरुआ था। अंडरस्टूड। वो तुम्हारा दोस्त है गुरदला। वो लोग क्या था, वो लोग जो आहूम किंग था, आहूम किंग का सार्बेन, मतलब उसका। नहीं नहीं नहीं, वो दूसरा वाला है। गुदरवा बुरुआ जो था, वो आहूम किंग का जो खाना टेस्ट करता, मैंने खाना टेस्ट के बाद। नहीं नहीं, राजा जब खाता है आफ्टर दैट राजा का क्या होता है, वो निकालता है ना खाने के बाद। वो चेकअप करते हैं, उसको बोलते हैं गुदोरा बुरा, मतलब राजा का गैस्ट्रिक है क्या, राजा का खाना में मतलब कुछ डिफिकल्टी है क्या, ऑयल ज्यादा हो गया या मसला ज्यादा हो गया, उसी के लिए। इट्स मेंशन इन आसाम हिस्ट्री। हाँ, it's mentioned in Assam history. When you visit to तलातलगर, तलातलगर में जब विजिट करेंगे वहां पे, तलातलगर के पास ही है उन लोग का बाथरूम था, हाँ, वॉशरूम था पूरा, लंबा वाला था। वहां पे जाओ कभी है। मैं गया था तलातलगर में। आहूम किंग का बाथरूम है वहां पे पूरा, अभी हम लोग का सब सैयारा वाला पार्टी जाके, सैयारा वाला पार्टी जाके वहां पे ऐसे ऐसे प्लस प्लस माइनस ड्रॉ करके आ गए आहूम के बाथरूम में है। अंडरस्टूड। So hotspot volcanic activity can also occur away from the plate boundary. दो टाइप पे होता है, एक डाइवर्जन बाउंड्री में होता है, एक कहाँ पे होता है, कन्वर्जन बाउंड्री में होता है। समटाइम in some hotspot under volcanic activity can also occur away from the plate boundary where plumes of hot metal material rise, melting crust and causing volcanic activity such as हवाई में होता है, हवाई आइलैंड में होता है। अंडरस्टूड, क्योंकि हवाई एकदम बीच में है ना, पूरा पैसिफिक के बीच में, वहां पे तो डाइवर्जन कन्वर्जन कुछ होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि वहां पे आज का क्रस्ट जो है वो बहुत क्या होता है, स्लाइड क्रस्ट है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मैग्मा हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर की वजह से क्रस्ट को भी क्या कर देता है, मेल्ट कर देता है। सो ड्यू टू दिस रीजन वहां पे क्या होता है, हॉटस्पॉट रीजन है। सो वहां पे क्या होता है, वोल्केनिक एक्टिविटी होता है। सो डाइवर्जन कन्वर्जन, डाइवर्जन कहाँ पे होता है, अटलांटिक आसन में होता है। कन्वर्जन कहाँ पे होता है, फॉर एग्जाम्पल कहाँ कहाँ होता है कन्वर्जन, रिंग ऑफ फायर में होता है, और कहाँ पे होता है, मेडिटेरियन, याद था ना, मेडिटेरियन सी में होता है। अंडरस्टूड। यहाँ पे कन्वर्जन होता है। इंडियन ओशन में क्या होता है, कन्वर्जन होता है। अंडरस्टूड। जो हम लोग का है ना, इंडिया का एक्टिव वोल्केनो का नाम क्या है, वेरेन आइलैंड। एक्टिव वोल्केनो, ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ आवर इंडिया इज वेरेन आइलैंड, याद रखना, ओनली एक्टिव वोल्केनो, और कहाँ पे नहीं है। अंडरस्टूड। और कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे है क्या, और वोल्केनो होता है क्या इंडिया में, नाम सुना है कभी? नहीं है। ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया इज वेरेन आइलैंड। एक्टिव मतलब 24/7 नहीं है, 2 दिन होगा, 2 दिन रेस्ट लेगा, हाँ। कंप्लीट एक्टिव नहीं है। कंप्लीट कंप्लीट एक्टिव कहाँ पे है, हवाई में जाओ कभी है, पूरा आग ही आग निकलता है। अच्छा, हवाई में जाओ, हवाई कहाँ पे है, इम्पोर्टेंट नहीं है।
ये लो, टाइप ऑफ वोल्केनोस याद याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। शील वोल्केनो, शील वोल्केनो, शील वोल्केनो का और एक नाम है बेसिक वोल्केनो है, बेसिक टाइप वोल्केनो। कहाँ से आ रहे हो? अरुणाचल से? और इसको हम क्या नाम देते हैं? बसल्टिक है। और बेस, मतलब वो बेस होता है, एसिडिक नहीं होता है, अंदर से बेसिक होता है, अंडरस्टूड? बेसिक वोल्केनो, वोल्केनो है। तो इसको हम क्या देते हैं नाम? बसल्टिक, अंडरस्टूड? ड्यू टू द नेचर ऑफ मैग्मा। हाँ, मैग्मा का नेचर के मैग्मा का पीएच स्केल के ऊपर निर्भर करके हम उसको डिफाइन करते हैं। एक क्या है? बसल्टिक, और एक क्या है? और एक क्या है? एसिडिक वोल्केनो होता है। एसिडिक का और एक नाम क्या था? हाँ, एसिडिटी नहीं है, गैस्ट्रिक वाला एसिडिटी बोल दिया। एंटीसाइडिक की बात वो नाम था, कल भी लिखा था ना? हाँ, एंटी एंटीसाइडिक है, एंटीसाइडिक है, स्टेट ऑफ वोल्केनोस है। उसको हम क्या, और एक नाम है, इसका नाम क्या है? कंपोजिट वोल्केनो भी मिलते हैं। लावा फ्लो, इजीली इजीली लावा का फ्लो होता है, क्रिएटिंग वाइट एंड फ्लैट लेयर। वो एग्जाम में पूछेगा, हाँ ये पूछे, एग्जाम में पूछ सकता है, ये सीडीएस में पूछेगा, हाँ, वो एनडीए में भी पूछ सकता है, टफ क्वेश्चन आ जाएगा तो एनडीए में भी पूछेगा। माउना लोआ इन हवाई, हाँ, हवाई आइलैंड में जो वोल्केनिक इरप्शन होता है उसको क्या बोले, उसमें कौन सा वोल्केनो का एग्जांपल है? शील, शील वोल्केनो का, अंडरस्टूड? शील मतलब बेसाल्टिक वोल्केनो और बेसिक वोल्केनो। हाँ, बेसाल्टिक और बेसिक, बेसाल्टिक और ऐसे होता है, मतलब ब्रॉड होता है, बहुत ब्रॉड एरिया को कैप्चर करता है, अंडरस्टूड? तो क्या होता है, बेसिक बेसिक होता है, बेसिक की वजह से, बेसिडिक और बसाल्टिक की वजह से वहाँ पे बहुत लो डेंसिटी होता है, तो वह डायरेक्ट इजीली फ्लो कर देता है, अंडरस्टूड? जेंटल स्लोपिंग, इजीली फ्लो होता है। ड्यू टू द इजी फ्लो वहाँ पे क्या होता है, पूरा ब्रॉड होता है, ऊपर ऊपर में जो लावा फॉर्मेशन होता है, ऊपर में क्या फॉर्मेशन होता है? लावा फॉर्मेशन होता है ना, लावा पूरा ब्रॉड फॉर्मेशन होता है, जेंटल स्लोपिंग होता है, क्रिएटिंग वाइड वाइड एरिया, फ्लैट लेयर है, पूरा एक लेयर, ऐसे ऐसे लेयर फॉर्म होता है, फ्लैट लेयर फॉर्मेशन होता है। ओके, तो एग्जाम्पल क्या है? माउना लोआ वोल्केनिक साइट इन हवाई आइलैंड है। हवाई आइलैंड का कौन सा सी में है? पैसिफिक है, याद रखना, पैसिफिक ओशन में है। एसएससी में पूछा था ना, सीएचएल सेल में, हवाई आइलैंड कहाँ पे है, इतने इजी क्वेश्चन पूछते हैं। सीएचएसएल में पूछा, हाँ। अलेक्सा कहाँ पे है? हाँ, हाँ। चिकजक, चिकजक कौन सा था? एल्फ्रेड वेगनर के घर में? हाँ, पैसिफिक में है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में है ना? कुरिल, कुरिल आइलैंड, कुरिल आइलैंड, कुरिल, नाम सुना है? कुरिल, कुरिल, कुरिल का नाम नहीं सुना तुमने? न्यूज़पेपर कभी ऐसे, न्यूज़पेपर में डेली न्यूज़ में है कुरिल आइलैंड, क्योंकि चाइना नीचे, चाइना साउथर्न साइड से चाइना अटैक कर रहा है कुरिल आइलैंड में, ऊपर से जापान इसलिए वहाँ पे पूरा हॉटस्पॉट है कुरिल आइलैंड, अंडरस्टैंड? क्योंकि कुरिल आइलैंड जो कैप्चर करेगा वो बहुत बड़ा रीच हो जाएगा, बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन में कुरिल आइलैंड, कुरिल आइलैंड जो कैप्चर करेगा वो पूरा पैसिफिक रीजन में पूरा कैप्चर कर सकता है, अंडरस्टैंड? ईस्ट पैसिफिक रीजन में। जावा आइलैंड, जावा, सुमात्रा इज डिफरेंट आइलैंड, जावा आइलैंड सुमात्रा आइलैंड है। सेचिल आइलैंड, ये न्यूज में है, सेचिल आइलैंड न्यूज में है, नाम सुन, न्यूज में सुना है ना?
कहाँ पे है? साउथ चाइना सी में है। साउथ चाइना सी में, वो चाइना ऑक्युपाई करके बैठा हुआ है। दूसरा का आइलैंड है, वो चाइना ऑक्युपाई करके बैठा हुआ है। अंडर हिज इनिशिएटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस इनिशिएटिव का नाम बेल्ट रूट इनिशिएटिव। इसलिए इसके लिए जितना भी इंडियन नेवी का जितना भी ड्रिल हो रहा है, सब कहाँ पे हो रहा है? अंडमान निकोबार आइलैंड में हो रहा है। अंडरस्टूड? किस लिए हो रहा है? क्योंकि साउथ चाइना सी में चाइना ने पूरा सब आइलैंड ऑक्युपाई करके बैठा है, इसलिए इंडिया का जितना नेवल बेस है, ड्रिलिंग हो रहा है, सब कहाँ पे हो रहा है? अंडमान निकोबार में। और ऊपर हो रहा है, ऊपर कहाँ हो रहा है? जीबी टू आइलैंड है। जीबी टू आइलैंड इंडिया का नहीं है, वो किसका आइलैंड है? जापान। इंडिया जापान पूरा फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग है। अंडरस्टूड? बहुत भाई भाई है। इंडिया और जापान पूरा बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है। हम दोनों के बीच में एक क्या हुआ है, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एसी ऐसे एग्रीमेंट है। एसी ऐसे एग्रीमेंट बोलते हैं। कब हुआ वो? 2020 में हुआ। अंडरस्टूड? 2020 में हुआ। और 2021 में यूपीएससी ने वो मेंस में क्वेश्चन पूछ दिया। और ये एग्रीमेंट की वजह से मतलब क्या हुआ? जापान का जो नेवी है, जापान का नेवी इंडियन इंडियन जो नेवल बेस है, कहाँ पे है इंडियन नेवी का बेस? अंडमान निकोबार में। सो जापान का नेवी इंडियन अंडमान निकोबार में उन लोगों का एसएस मिल गया, और इंडियन नेवी को जीबी2 में, जापान का जीबी2 आइलैंड में एसएस मिल गया। तो तुम लोग जब नेवी में जाओगे तब कभी वहां पे भी जा सकते हो। अंडरस्टूड? वो कहाँ पे है? जापान के पास है। हाँ, जाओ कभी वहां पे। हाँ, चाइना भी बैठा हुआ है लाल आंख लेके। हैं, चाइना बहुत डेंजर है। जहाँ जहाँ घूम रहा है। वो देखो, इन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था ना, इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था ना श्रीलंका में। तो इंडिया ने पूरा $4 बिलियन दिया श्रीलंका को। चाइना ने एक रुपीज वहां पे हेल्प नहीं किया श्रीलंका को। बाद में क्या हुआ? वहां पे जब उन लोगों का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पूरा स्ट्रांग हो गया, तो वहां पे चाइना ने एंटर कर दिया आफ्टर। Sir, so sorry to interrupt. I just got what I'm sir. हाँ, Apparently, someone left their bike in the footpath. Whose bike is this? किसका bike है? Oh, yours. अच्छा, फाइन काट लो सर, फाइन काट लो सर। हाँ, fine कटेगा। मेरे नाम भी है। वो कहाँ पे रूट में रख के आ गए? हाँ, पार्किंग नहीं है ना यहाँ पे। यहाँ पे तो पार्किंग नहीं दे, रूट के बीच पे रखो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। बस वहां पे रखो, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। बाइक मिलेगा, वो तो नहीं मिलेगा ऊपर से। सो ये देखो, हाँ, शील वोल्केनो ऑल्सो नोन एज बेसाल्टिक और बेसिक वोल्केनो, याद रखना जस्ट। ये पूरा ब्रॉड होता है ड्यू टू द इट्स फ्लो, इजीली फ्लो होता है। डेंसिटी लो डेंसिटी होता है। बाद में क्या है? स्टेटो वोल्केनो, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट वोल्केनो, एसिडिक और एंडेसाइटिक वोल्केनो बोलते हैं। शेप क्या है? पूरा स्टीप होता है। स्टीप मतलब ब्रॉड नहीं होता है, पूरा स्ट्रिप शेप होता है। यहाँ पे पूरा माउंटेन टाइप फॉर्म हो जाता है। अंडरस्टूड? ड्यू टू दिस स्टेटो वोल्केनो क्या फॉर्म होता है? पूरा माउंटेन फॉर्म हो जाता है। अंडरस्टूड? यहाँ पे क्या फॉर्म होता है? इज लाइक, क्या फॉर्म होता है यहाँ पे? प्लेटू टाइप फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है? डायरेक्ट हाई हिल माउंटेन टाइप फॉर्मेशन हो जाता है, कोनिकल शेप। तो यहाँ पे ऐसे होता है। ऐसे ऐसे फॉर्म होता है विथ लेयर्स ऑफ लावा एंड एश। एश भी रहता है, ऊपर एश रहता है, ऊपर पूरा क्या रहता है? एश निकल के आता है। इरप्शन एक्सप्लोसिव होता है एंड डेंजरस होता है। वो कहाँ पे होता है? वो बेसिकली कहाँ पे होता है? याद रखना, स्टेट ऑफ वोल्केनो बेसिकली कहाँ पे होता है? कन्वर्जन बाउंड्री में होता है। ये याद रखना, स्टेट ऑफ वोल्केनो बेसिकली कहाँ पे होता है? कन्वर्जन बाउंड्री में होता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, माउंट सेंट हेलेंस, ये आइलैंड है। माउंट सेंट हेलेन आइलैंड है, कहाँ पे है? यूएसए का है। यूएसए पे नहीं है, यूएसए का आइलैंड है। वर्ल्ड का मैक्सिमम आइलैंड किसके अंदर है? ऑक्युपाई, कौन ऑक्युपाई करके बैठा हुआ है? यूएसए। और जितना बाकी है वो किसके पास है? चाइना, चाइना के नहीं, फ्रांस के पास है। बाद में चाइना के पास है। अंडरस्टूड? हाँ, इंडिया किसी को ऑक्युपाई नहीं करते, क्योंकि इंडिया के आर्टिकल 1 में क्या लिखा है? इंडिया इज ए यूनियन, इंडिया डेट इज भारत,
हाँ, वी आर यूनिटरी स्टेट, मतलब यूनिटरी स्टेट, यूनियन ऑफ इंडिया बोलते हैं ना। सो वहाँ पे यूनियन है, हम किसी को ऑक्युपाई भी नहीं करेंगे और अपना खुद का माटी हम किसी को नहीं देंगे डायरेक्ट। इसलिए हम पीओके दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे। अक्साई चिन्ह दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे। तो हम एग्रीमेंट भी नहीं कर रहे, हम किसी को हमारा माटी भी नहीं देंगे और हम किसी को फोर्सफुली ऑक्युपाई नहीं करें। इच्छा होगा तो हम बांग्लादेश भी ऑक्युपाई कर सकते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाई कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों का आइडियोलॉजी में नहीं है हम ऑक्युपाई करें। श्रीलंका का तो 2 दिन में ऑक्युपाई कर सकते हो, जब उन लोग का पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था ना। हाँ, पूरा श्रीलंका में हम फिशिंग ग्राउंड बना के बैठे रहते हैं। श्रीलंका में जितना पीपल है सबको, सब पॉपुलेशन को कहाँ पे, तमिलनाडु में आ जाओ और श्रीलंका को हम टूरिस्ट प्लेस बना देंगे, फिशिंग ग्राउंड है। वो कहाँ पे है? रिंग ऑफ माउंट सी आइलैंड हेलेंस कहाँ पे? रिंग ऑफ फायर में है, यूएसए में है। पैसिफिक कौन सा ओशन में है? ओशन का नाम रखो। रिंग ऑफ फायर मतलब कौन सा ओशन होगा? ऑब्वियसली पैसिफिक होगा। स्टेट ऑफ वोल्केनो पूरा एक्सप्लोसिव होता है, ड्यू टू दिस एक्सप्लोसिव नेचर। वहां पे क्या होता है, पूरा स्टीप होता है ना, पूरा स्टीप एंड कोनिकल शेप। सो ये इट्स लाइक माउंटेन टाइप फॉर्मेशन हो जाता है, माउंटेन लाइक है, माउंटेन लाइक वोल्केनिक इरप्शन होता है। ये प्लेटू लाइक होता है, यहाँ पे प्लेटू टाइप फॉर्मेशन होता है। तो हाईलैंड का फॉर्मेशन, प्लेटू इज लाइक हाईलैंड इन बिटवीन द प्लेन एंड माउंटेन। हो गया, हो गया, हो गया। थर्ड क्या है? सिंडार कौन वोल्केनो शेप क्या है? स्मॉल, छोटा छोटा एकदम। ये कहाँ पे फॉर्मेशन होता है बोलो? ये कहाँ पे फॉर्मेशन होता है? सिंडर कौन, सिंडर कौन फॉर्म इन ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में फॉर्म होता है। कहाँ पे फॉर्म होता है? ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जहाँ पे फोल्ड फॉर्म होता है। याद था ना, हमने डिस्कस किया। फोल्ड फॉर्म होता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कैसा होता है? ऐसे एक बाउंड्री, दो प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, दोनों प्लेट, ये इधर मूवमेंट कर रहा है, ये इधर मूवमेंट कर रहा है। तो बीच में जो वोल्केनिक इरप्शन होगा उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? सिंडर कॉन वोल्केनोस बोलते हैं। दिस टाइप शेप, स्मॉल शेप होता है, स्टीप एंड साइडेड कोन्स, ऐसे 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 वोल्केनिक इरप्शन होता है। स्मॉल स्मॉल इरप्शन, शॉर्ट लिव, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, टिपिकली नॉट वेरी लार्ज, नॉट लार्ज, स्मॉल स्मॉल। कहाँ पे होता है? एग्जाम्पल, पारिक्यूटिन आइलैंड है। कहाँ पे है पारिक्यूटिन आइलैंड? कहाँ पे है? मैक्सिको। कौन सा गल्फ में है? गल्फ ऑफ मैक्सिको में है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में है। गल्फ ऑफ मैक्सिको में है। वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे जो कौन सा कॉन्टिनेंट है? नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड साउथ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है उसका ट्रांसफॉर्म होता है, अंडरस्टूड? क्योंकि साउथ अमेरिका कहाँ पे मूवमेंट कर रहा है? वेस्टर्न साइड में मूवमेंट कर रहा है। और नॉर्थ अमेरिका कहाँ मूवमेंट कर रहा है? साउदर्न साइड में मूवमेंट, सॉरी साउदर्न नहीं, ईस्टर्न साइड में मूवमेंट हो। सो तो पूरा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री हो रहा है, अंडरस्टूड? सो ड्यू टू दिस ट्रांसफॉर्म, वहाँ पे जो वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है इज लाइक सिंडर कॉन बाय वोल्केनिक इरप्शन। तो कहाँ पे? मैक्सिमो में हो रहा है। मैक्सिमो, मैक्सिको जो गल्फ ऑफ मैक्सिको कौन सा ओशन का पार्ट है? गल्फ ऑफ मैक्सिको इज अ पार्ट ऑफ व्हिच ओशन? हाँ, पैसिफिक ओशन है, सब पैसिफिक। वर्ल्ड का कोई मैप ही याद नहीं है। रेड सी कहाँ? ग्रेट, रेड सी किसने बोला? ये क्या है? ये वाला पार्ट क्या है? दिस पार्ट इज पैसिफिक, दिस पार्ट इज पैसिफिक। ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका। ये क्या है? साउथ अमेरिका है। ये क्या है? यूरोप। ये क्या है? अफ्रीका, यूरोप इतना तक है, हाँ? और यहाँ से क्या है? एशिया। यहाँ पे क्या है? ऑस्ट्रेलिया। नीचे क्या है?
नीचे एंटार्क्टिका है, अंडरस्टूड। हम लोग के फिजियोग्राफी को मतलब ही नहीं है, नीचे बैठा हुआ है। सो ये वाला ओशन क्या है? पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका के बीच में जो ओशन है, इसका नाम क्या है? एटलांटिक। एटलांटिक ओशन। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में के बीच में यहाँ पे जो कंट्री है, इसका नाम क्या है? मेक्सिको है यहाँ पे, अंडरस्टूड। तो मेक्सिको, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में बीच में जो गल्फ है, इस गल्फ का नाम क्या है? गल्फ ऑफ मेक्सिको, अंडरस्टूड। तो ये अटलांटिक है। ये क्या है? इंडियन ओशन। ये क्या है? आर्टिक ओशन। ये क्या है? ये वाला कौन सा ओशन है? ये वाला कौन सा ओशन है? ये पैसिफिक है, हाँ? ये वाला कौन सा ओशन है? हाँ, ये तो अटलांटिक है। ये कौन सा होगा? पूरा डाउट में, ये भी पैसिफिक होगा, हाँ? कंफ्यूज क्यों हो रहा है? अर्थ इज नॉट फ्लैट है, राउंड है। ये पैसिफिक इधर जाके, ये अर्थ इज नॉट फ्लैट है, यहाँ पे पूरा राउंड है, हम फ्लैट में दिखा रहे हैं। तो इसको पूरा राउंड करो, पूरा पैसिफिक, पैसिफिक में रहेगा। कब कब था अर्थ फ्लैट? गैस था, हाँ, तब पैसिफिक नहीं था, हाँ। हाँ, कहा कौन सा बोल कर ना? डाइवर्जन में बोल, डाइवर्जन। हो गया ना? हो गया? क्लियर? टाइप ऑफ वोल्केनोस, होल नंबर लावा डोम्स, राउंड शेप होता है, ये याद रखना, राउंड शेप होता है। फोर नंबर टाइप राउंड शेप होता है। कैसे होता है, हाँ? ऐसे वोल्केनो होता है, हाँ। पूरा राष्ट्रपति भवन टाइप है। ठीक। स्ट्रिक्टली लावा दैट डज नॉट फ्लो। फ्लो नहीं होता है, इसलिए पूरा डोम शेप हो जाता है, अंडरस्टूड। फ्लो होगा तो कैसा होगा? पूरा फ्लैट टाइप होगा, जो शील वोल्केनो था ना, अंडरस्टूड। स्ट्रेटो वोल्केनो पूरा कोन टाइप होता है, हाँ। स्ट्रेटो वोल्केनो कैसा होता है? पूरा कोन टाइप होता है। और ये कौन सा था? शील वोल्केनो पूरा फ्लैट टाइप होता है। लावा डोम्स कैसा होता है? डोम टाइप। डोम याद है ना? तो डोम टाइप होता है, अंडरस्टूड। इट्स लाइक द डोम टाइप होता है, हाँ। इट्स लाइक स्तूपा, हाँ। हम सुना ना स्तूपा? एक ही स्तूपा नहीं है, सांची स्तूपा, वो तो यूनेस्को में है। बहुत सारा स्तूपा है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्तूपा? अरे बुद्धिस्ट, द बिगिनिंग पार्ट ऑफ, परासल क्या रिप्रेजेंट करता है? परासल क्या रिप्रेजेंट करता है? हाँ, परासल है ना, वो तीन लाला। हाँ, गेट। ये तुम बुद्धिस्ट हो ना? अंडा क्या रिप्रेजेंट करता है? अंडा। स्तूपा का जो डोम होता है, उसको अंडा बोलते हैं। एक नहीं है। क्या बोलते हैं उसको? अंडा क्या रिप्रेजेंट करता है? निर्वाणा, हाँ। पैरासोल रिप्रेजेंट करता है द अष्टांगी मार्ग ऑफ बुद्धा। गिफ्ट का नाम क्या था? तोराना। उसका नाम था सेक्रीफाइस। मतलब वो पूरा तीन फिलोसफी था ना बुद्धिस्ट का। थ्री बुक था ना। थ्री बुक में पूरा जितना भी सेक्रीफाइस है, वो सेक्रीफाइस मतलब तराना। तुम जब यहाँ स्तूपा के अंदर जाके, स्तूपा के बाहर जब गेट से निकलोगे, तब तुम जितना भी लाइफ का मतलब विश है, मेटेरियलिस्टिक विश है, वो पूरा तुम सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वो कहाँ पे मेंशन है? थ्री पिटका में मेंशन है। कौन सा पिटका है? बोलो बोलो बोलो, बुद्धिस्ट है, बोलो। सुत्ता पिटका और, हाँ, और बिना पिटका। ये याद रखो, हाँ। अंडरस्टूड। कौन सा वाला तुम फॉलो करते हो? हम्म, हाँ? महायाना। मैं ही नायना हूँ।
हाँ? और बहुत बाद में तो बहुत डिवीजन हुआ। महायाना हिनायाना तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था, जो जम्मू कश्मीर के कुंदलवन में हुआ था ना, कनिष्क के टाइम में। स्तूपा नहीं मानते तुम लोग, डायरेक्ट बुद्धा को वर्शिप करते हो, क्योंकि तुम लोग महायाना हो। हाँ? हिनायाना वाले स्तूपा मानते हैं, क्योंकि वो लोग बुद्धा को एज ए टीचर हिसाब से फॉलो करते हैं। अंडरस्टूड? दे आर ओरिजिनल बुद्धिस्ट, यू आर डुप्लीकेट। क्योंकि बुद्धा गौतम बुद्धा प्रोपागेट द बुद्धिस्ट रिलीजन as a that no idol worship. Understood? Monopoly. But you worship Buddha as an idol. तो डिफिकल्ट हो गया ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सब सब रिलीजन में डिफिकल्टी है। अंडरस्टूड? सब रिलीजन में डिफिकल्टी है, मतलब डिफिकल्टी वो जो रिलीजन जो प्रोपागेट करते हैं उन लोगों के बीच में डिफिकल्टी नहीं था। इस्लाम में देखो, प्रोफेट मोहम्मद में डिफिकल्टी नहीं था, बाद में जो लोग उसका पूरा मतलब भार लिया ना, उन लोगों के बीच में डिफिकल्टी निकला। अंडरस्टूड? हिंदुइज्म में सिमिलरली अंडरस्टूड। हम लोग का एक वो छोड़ो, वो पुराना एंशियंट रिलीजन है। रिसेंट जो रिलीजन का डेवलप वाले सिख रिलीजन है, असम में जो एक खरन नाम धर्म है, वहां पे भी डिफिकल्टी देखो। तो एक खरन नाम धर्म जो महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने डेवलप किया, वहां पे क्या बोला शंकरदेव जी ने, जैसे वर्शिप मत करो, आइडल वर्शिप मत करो। अंडरस्टूड? आइडल वर्शिप मत करो। लेकिन आसाम में एक खरन नाम धर्म वैष्णव रिलीजन वाला बहुत लोग अभी भी आइडल वर्शिप कर रहे हैं। कि वहां से जब शंकरदेव जी का जब डेथ हुआ, बाद में वो एक सरन नाम धर्म भी पांच टाइप में डिवाइड हो गए। अंडरस्टूड? एनीवन फ्रॉम एक खरन नाम धर्म? वो एकदम शी इज फ्रॉम द दक्षिण बात खत्रो। हाँ? अंडरस्टूड? दक्षिण बात खत्रो। हाँ? ये दक्षिण बात खत्रो इज अंडर ब्राह्मो समिति है, नाम सुना ना? ब्राह्मो समिति, कला समिति, निका समिति, पुरु समिति है। जानते हैं? ये रिलीजन रिलीजन वाला बहुत अच्छा एक चैप्टर है। तो ये देखो लाबाडोम्स। लाबाडोम्स क्या है? राउंड शेप है। लाबाडोम इज राउंड शेप्स लाइक डोम लाइक। ठीक। कहाँ पे होता है? माउंट सेंट हेलेंस, यहाँ पे कहाँ पे है? यस ना, दोनों, ये वो भी होता है, ये भी होता है। So this type of volcano differ mainly in their shape. According to the shape, this type of volcano. Understood? Or some other type of volcanoes. ये देखो, composite volcano। ये composite volcano हो। सिंडर कोन वोल्केनो, कौन टाइप होता है? composite volcano मतलब क्या है? पूरा लावा ऊपर में फॉर्म होके बीच से क्या होता है? लावा ऐसे निकल के आ जाता है, डोम से, डोम के बीच में से। अंडरस्टूड? कंपोजिट वोल्केनो में कैसे क्या होता है? ये पूरा तो डोम से फॉर्म हुआ। यहाँ पे पूरा लावा निकल रहा है, मैग्मा नीचे से आके ऊपर लावा होकर निकल रहा है। तो बीच में से और भी लावा ऐसे ऐसे निकल जाता है। यहाँ से भी लावा निकल रहा है, यहाँ से भी लावा निकल रहा है। सो दिस टाइप ऑफ वोल्केनोज आर नोन एज कंपोजिट। सो यहाँ पे डायरेक्ट आके एक तो पूरा मैग्मा डायरेक्ट ऊपर में आके लावा फॉर्म हो रहा है। सो बीच में से भी ऐसे लावा निकल रहा है। अंडरस्टूड? वन डायरेक्शनल नहीं है, कंपोजिट डायरेक्शन है। सो दिस टाइप ऑफ वोल्केनो इज नोन एज कंपोजिट वोल्केनो। सिंडर कौन वोल्केनो एक ही लाइन में लावा निकल रहा है, बीच में से कंपोजिट नहीं हो रहा है, एक ही लाइन में निकल रहा है। सो दिस इज नोन एज सिंडर कौन वोल्केनो। शील वोल्केनो मतलब बहुत सारे, मतलब सिंडर निकल रहा है, इसको सिंडर बोलते हैं। जो मेन पाथ से डाइवर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? सिंडर्स बोलते हैं। अंदर मेन पाथ से जो मैग्मा का जो मेन पाथ है, मेन जो कन्वेक्शनल पाथ है, मेन कन्वेक्शनल पाथ से जो डाइवर्ट होके जो लावा निकलता है उसको क्या बोलते हैं? सिंडर। सो सिंडर डेफिनेशन लिख लो। सिंडर इज द डाइवर्ट पाथ ऑफ ऑफ मैग्मा फ्रॉम द ओरिजिनल, फ्रॉम द कन्वेक्शनल पाथ, जो कन्वेक्शनल फोर्स के वजह से क्रिएट होना, फ्रॉम द ओरिजिनल कन्वेक्शनल पाथ, फ्रॉम द ओरिजिनल कन्वेक्शनल पाथ। ये पिक्चर ड्रॉ करो। कैसे हो तुम लोग? पूरा पिक्चर ड्रॉ करो। हाँ? रिचू कुंडू, ऋषा कुंडू। बोलो बोलो क्वेश्चन। ऋषा कुंडू, हेलो।
ईशा कुंडू गायब हो गया, हाँ। एक दिन यूट्यूब में लाइव क्लास था मेरा। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, सर 1 वीक में मेंस का सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। तो मैंने बोला, तुम यूट्यूब में जैसे यूट्यूब में 2x करते हैं, तुम 1 वीक में 2x में डालो तो कंप्लीट होगा। सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट 1 वीक। 2x में तो तुम्हारा टाइम टेबल को 2x में नहीं डाल सकते हो। उल्टा उल्टा क्वेश्चन बोलते हैं। 1 मंथ में मेंस का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, 3 मंथ में भी कंप्लीट नहीं होता है। जिसने बाबा प्रीलिम्स क्लियर करके डायरेक्ट मेंस दे दूंगा, मैं क्लियर नहीं होता है। 1 ईयर का प्रिपरेशन लगता है, क्योंकि मेंस में देखो कितना क्वेश्चन है, 250 मार्क का होता है। 1 पेपर में कितना मार्क है, 1 पेपर 250 मार्क। टाइम कितना है, एक मतलब 10 मार्क का, 10 क्वेश्चन, 15 मार्क का 10 क्वेश्चन। 10 मार्क के क्वेश्चन के लिए तुमको 150 वर्ड लिखना चाहिए, और 250 15 मार्क के लिए तुमको कितना वर्ड लिखना चाहिए, 250। उसी को लेकर चलो यार। अभी मैट्रिक में देखो 80 मार्क का क्वेश्चन और एमसीक्यू फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ। 45 एमसीक्यू का, 45 राइटिंग, तभी भी 3 आवर में कंप्लीट कर मतलब सोशल साइंस में बहुत टाइम लग गया। यहाँ पे देखो 3 आवर में, और क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन नहीं है। कैसे कैसे क्वेश्चन आया था, वन क्वेश्चन आया था, इस मन की बात ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी विच चेंज द इंडियन सोसाइटी है। और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के ऊपर से तुम मन की बात को तुम डिफाइन करो। प्राइम मिनिस्टर की मन की बात सुने हो कभी, प्राइम मिनिस्टर को? मैंने भी नहीं सुना, लेकिन वहां पे आंसर लिख के आया। ऐसे और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, number in the social institute, how can change the social dispute and economic dispute of a society। हम क्या कहते हैं, तुम सोशल डिस्प्यूट एंड इकोनॉमिक डिस्प्यूट को कैसे तुम टेकल कर रहे हो, क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ नहीं से क्वेश्चन आता है, तो तुम 1 मंथ का तुम्हारा टाइम पीरियड से वो कंप्लीट नहीं होगा, 2 मंथ के लिए नहीं होगा, 3 मंथ के लिए नहीं होगा, तो तुम्हारे हाथ में बहुत पीछे है। तो ये पूरा ब्रेक डाउन होना पड़ेगा, हाँ। ये भी पूरा फाल से करके रहा, निकालना पड़ेगा, ब्लड निकलता है तो पेन भी ब्रेक हो जाता है। सारा निकल करना ही पड़ता नहीं तो तुम्हारा ये बताइए। सिंपल करना क्या है, सिंपल करना की स्लाइड क्या होता है, Basaltic rock, basaltic, यहाँ पे लो सिंडर होता है, सिंडर मतलब इतना ज्यादा सिंडर नहीं होता है, लो सिंडर होता है। यहाँ पे सिंडर 0, नो सिंडर। सिंडर कौन बोलते हैं, नो सिंडर, सिंडर कौन बोलते हैं, नो सिंडर। और यहाँ पे मैक्सिमम सिंडर, cinder, सिंडर कौन बोलते हैं, मतलब हमारी सिंडर है, एक ही पार्ट है, एक ही पार्ट है, तो इसको सिंडर कौन बोलते हैं। कंपोजिट पोलकनों में सिंडर क्या होता है, लो सिंडर, तो 2 3 4 5 सिंडर निकलते हैं, लेकिन स्टील पोलकनों में, स्टील पोलकनों में पूरा सीरीज है, सीरीज की पूरा सिंडर मैक्सिमम है, मैक्सिमम सिंडर निकलते हैं। क्या सबसे बड़ा, सबसे वाला झंझट यही है ना, सबसे वाला झंझट यही है, क्योंकि वो पूरा सेट हो जाता है, पूरा फोन टैक्स हो गया। ये strato, अच्छा, फिर स्ट्रेटोमेर, हाँ, no sir, ये जो स्ट्रेटो में लो सिंडर्स, स्टेटिक वोल्केनो, कंपोजिट वोल्केनो, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक वोल्केनो, एसिडिक वोल्केनो, बहुत नाम है, बहुत सारे नाम है। कंपोजिट वोल्केनो है, स्टेटिक वोल्केनो है, एसिडिक वोल्केनो, एसिडिक वोल्केनो इसको बोलते हैं। ये स्टील वोल्केनो है, एसिडिक वोल्केनो, और क्या है, सल्फेट वोल्केनो है, प्लस और ये सिंडरबोन वोल्केनो, सिंडरबोन वोल्केनो।
सबसे big होता है। ये कहाँ से फॉर्म होता है? मैक्सिमम इज फॉर्मिंग कन्वर्जन बाउंड्री। convergent मैक्सिमम कहाँ पे फॉर्म होता है? कन्वर्जन बाउंड्री। divergent डाइवर्जन बाउंड्री दिस इज बेसिकली रीड्स फॉर्मेशन होता है, दूसरे में रीड का वर्ड। ये बेसिकली क्या फॉर्म होता है? उनका लिखना ये बेसिकली क्या फॉर्म होता है? माउंटेन mountain क्या होगा? जो ट्रांस हिमालय है ना, ट्रांस हिमालय से फॉर्म होता है। नेगेटिव इम्पैक्ट का पॉजिटिव डायरेक्शन है, क्या होगा पॉजिटिव? The positive reaction can have a positive क्या और positive हाँ क्या होगा? उसमें इक्वेशन आएगा और क्या है? रोटेशन आएगा, फर्टिलिटी, एक ही चीज को मेकअप किए करेगा। एक ही तुम चीज को क्यों मेकअप कर रहा हो? मतलब ये रिएक्शन क्या है? पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन आर a positive reaction can be helpful in adding nutrients in the soil that can increase fertility of the soil. एक ही पॉइंट है, तुमने दो बार बोला है। न्यूट्रिशन की वजह से फर्टिलिटी नहीं होता है। This can result in the increasing the quality of the soil. एक ही पॉइंट बोल रहा है। क्वालिटी से होगा तो क्या होगा? ग्रोथ का ग्रोथ ज्यादा होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो क्या होगा? पॉलिटिकल ग्रोथ होगा। सो बेनिफिट से मिल जाए। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के ऊपर क्या डिपेंड है? इकोनॉमी के ऊपर। इकोनॉमी के ऊपर क्या डिपेंड है? पॉलिटिक्स के ऊपर। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ज्योग्राफी। तुम ये देखो, रिलीजन रिलीजन किसके ऊपर डिपेंड है? ज्योग्राफी के ऊपर डिपेंड है। तिब्बत के लोग कैसे क्या पहनते हैं? यहाँ पे असम का जो मुस्लिम लोग है क्षेत्र प्रोटेक्शन चाहिए पूरा वहाँ पे इस मुस्लिम रिलीजन का वहाँ पे डेवलप हुआ तो लोग मान लिया तो पूरा आइडियोलॉजी है, यही रूल है, ये रूल नहीं है, ये डेवलप है ज्योग्राफी की वजह से। Negative impact of the volcanic eruption in the global warming. Obviously, temperature, high temperature जब निकल के आएगा, temperature rise होगा ना, so global warming was due to the release of fuels, ash, dust, particles को निकालना ना. Volcanic eruption then includes and explosion can destroy nearby places, including thousands of acres. So यहाँ से निकलेगा तो हम, for example यहाँ से निकल आ रहा है, खत्म ना? आपको इतना बचना हो गया? बल्कि ना खत्म? कुछ डाउट है बल्कि में? no Any doubt? no हमारी सबसे ज्यादा एक्टिव केस कहाँ है? सबसे ज्यादा 70% वोल्केनिक एक्टिविटी कहाँ पे होते हैं? नेपाल में बोलते हैं। सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? रिंग ऑफ फायर का और एक नाम क्या है? सरगाम पैसिफिक बेल्ट। सरगाम पैसिफिक बेल्ट। मूल नाम का उसका और क्या नाम होगा? कन्वर्जेंट पैसिफिक प्लेट बाउंड्री है। कन्वर्जेंट पैसिफिक प्लेट बाउंड्री वहाँ पे सबसे ज्यादा होता है ना, तो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है। तो रिंग ऑफ फायर का सबसे ऊपर वाला कौन सा रीजन है? कौन सा सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? जापान जापान के पास क्या है? कुरिल आइलैंड है। कुरिल आइलैंड में बहुत ज्यादा होता है। जापान, कुरिल आइलैंड। बाद में क्या है? वियतनाम है। नाम सुना है वियतनाम? वियतनाम में होता है। बाद में क्या होता है? फिलीपाइंस। नाम सुना है फिलीपाइंस? फिलीपींस नाम सुना है? फिलीपींस। बाद में इंडोनेशिया, फिलीपीन, इंडोनेशिया के दो आइलैंड है जिसका नाम क्या है? जापान
जावा आइलैंड और क्या है? बाद में एकदम जाके 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 एकदम क्या है? न्यूजीलैंड, नाम सुना ना न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड एकदम नीचे, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे न्यूजीलैंड है, यहाँ पे न्यूजीलैंड है। यहाँ पे क्या है? अलास्का, अलास्का, यहाँ पे क्या है? यूएसए है ना पूरा, यहाँ पे अमेरिका है, यहाँ पे आइलैंड का नाम बोलो ना, माउंट सेंट हेलेंस, नाम सुना ना? माउंट Saint Helens. सेंट हेलेंस यहाँ पे है, माउंट सेंट हेलेंस आइलैंड है, यूएसए के पास है। बाद में यहाँ पे क्या है? पूरा चिली है, चिली है ना, चिली ईस्टर्न कोस्ट ऑफ जो ईस्टर्न साउथ अमेरिका है चिली, तो यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड है। तो इस बेल्ट को हम क्या बोलते हैं? ये पूरा बेल्ट जो है, तो पूरा बेल्ट का हम क्या बोलेंगे? Ring of Fire. रिंग ऑफ फायर बेल्ट बोलते हैं। ये एक एकदम बीच में क्या है? हवाई आइलैंड, हवाई आइलैंड, यही था ना? बोल रहा हूँ मैं। इंडिया में सुनता है 70% पोलैरिटी बहुत बड़ा है, 20% कहा होता है, 20% कहा होता है? मेडिटेरियन, मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी क्या है? द ओल्डेस्ट सी है, ओल्डेस्ट सी ऑफ इन द वर्ल्ड। भारत का जो सबसे पुराना वाला सी कौन सा है? मेडिटेरियन, मेडिटेरियन सी का पार्ट ऑफ व्हिच सी? पार्ट ऑफ पैसिफिक है, पार्ट ऑफ पैसिफिक हुआ, उधर बीच में पैसिफिक कहाँ से है यार? के नीचे क्या होगा? कैसे पूरी पूरी के ये आधा पूरी पूरी जापान का क्या कर रही हुआ क्या होगा इधर से पूरी आइलैंड, ये वियतनाम में है, वियतनाम पूरी आइलैंड, वियतनाम, बहुत सारा आइलैंड है, बहुत सारा है, जैसे नाम सुना ना, नॉर्थ कोरिया, किम जोंग वाला, नॉर्थ कोरिया भी है, आप नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया सब रिंग ऑफ फायर में, फिलीपाइन, जावा, सुमात्रा, नॉर्थ कोरिया है रिंग ऑफ फायर में, पेनाल्टी में चलेगा ऐसे किम जोंग, और क्वालिफिकेशन कहाँ पे होता है? Military से located at 36, बात अब अभी का है, 36 तो अभी नहीं है, अभी मेडिटेरियन सी कहाँ पे है? ब्लैक सी के पास, ब्लैक सी कहाँ है? ब्लैक सी के पास, यस, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो है, यूक्रेन और रशिया के सी है, उसको क्या बोलते हैं? ब्लैक सी, अंडरस्टूड? ये ब्लैक सी लेके, ब्लैक सी के आगे छोटा छोटा आइलैंड लेके दोनों कंट्री कॉम्पीट कर, अंडरस्टूड? यूक्रेन एंड रशिया, नहीं मेडिटेरियन सी ब्लैक सी में किसे मेडिटेरियन सी तो कहाँ है सर Mediterranean Sea? हो गया
बहुत वीक होगा। ये क्या है, यूरोप है ना, ये वाला यूरोप है। यहाँ से रशिया से यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया, एशिया। ये भी एशिया अंदर से, ये क्या है, इंडिया अंदर से, ये क्या है, पाकिस्तान है। ये क्या है, गल्फ कंट्री है। ये क्या है, यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा क्या है, सऊदी अरब है, यूएई है, दुबई है, कतार है, चलो है। यहाँ पे क्या है, इजराइल है, नाम सुना ना, इजराइल, ईरान, इराक, जर्दान, सूडान, सब यहाँ पे है। और ये सी का नाम क्या है, ये वाला सी का नाम क्या है, ये वाला सी का नाम क्या है, रेड सी, याद है ना, ये वाला सी, ये वाला पार्ट का नाम क्या है, ये वाला, ये वाला पार्ट का नाम क्या है, रेड सी, अंदर रेड सी। और ये वाला सी का नाम क्या है, मेडी मेडिटेरियन सी। ये वाला पार्ट का नाम है मेडिटेरियन सी। और ब्लैक सी का नाम है, तुमने बोला है ना ब्लैक सी, ये वाला क्या होगा ना, ऊपर क्या है, यूक्रेन है, यहाँ पे क्या है, यूक्रेन है, इधर यूक्रेन है, इधर क्या है, पूरा कंफ्लिक्ट चल रहा है उससे। So where is the Mediterranean Sea between Europe and? So this region is known as Mediterranean Sea belt है। यहाँ पे क्या होता है, वोल्केनिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा यहाँ पे होता है। ऊपर वाला पार्ट में, नॉर्थन साइड में वोल्केनिक होता है, जो आइलैंड है वहाँ पे बहुत वोल्केनिक होता है। 20% वर्ल्ड का 20% वोल्केनिक एक्टिविटी होता है। 20% of world volcanic activity in Mediterranean. क्या बोला, सीएम मारा, ये सब क्लियर कब होगा, जाए जब लास्ट वाला टॉपिक जब हम डिस्कस करेंगे ना, वर्ल्ड मैपिंग, ठीक है, कॉन्टिनेंट लेक पे पूरा, वहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा लेक कहाँ पे है, वो क्वेश्चन एमडी में बहुत ज्यादा पूछते हैं, सीडीएस में भी पूछते हैं। सबसे बड़ा लेक कहाँ पे है, सबसे बड़ा रिवर कहाँ पे है, सबसे छोटा रिवर कहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी, सब डिस्कस करना, वर्ल्ड मैपिंग वो वाला सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है, अंडरस्टूड। क्या बोला, सी ऑफ मार्मर, यस यस, सी ऑफ मार्मर है यहाँ पे। ये वाला पार्ट है सर, ये ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी के बीच में एक छोटा वाला पार्ट है जिसको क्या बोलते हैं, सी ऑफ मार्मरा। देख लो, ये वाला पार्ट है, ये छोटा वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, सी ऑफ मार्मरा। तो क्या बोलते हैं, सी ऑफ, इसको हम क्या बोलते हैं, सी ऑफ Marmara. मार्मरा। ये कौन सा सी है, Arabian Sea. पूरा ओशन का नाम क्या है, इंडियन Indian Ocean. ओशन। ये वाला ओशन का नाम क्या है, अटलांटिक ओशन। Geography.
Next. Completely कर दो. So आप क्लास ले लेगा नहीं सर नेक्स्ट क्लास में करो ना आपका ही क्लास है नेक्स्ट इस क्लास में मेरा ये ब्रेक ही चाहिए. नहीं सर ब्रेक दे दिया Checking of कुछ नहीं. What is आपका कैंडिडेट क्योंकि आपने कंप्यूटर में ये कुल्लू कहाँ गए? It's of love. It's not habit ba? Hindi ko habit. Yeah, I've been at it. It's